أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. سورہ انشقاق ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. جب آسمان شک ہو اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے سجاوار ہی یہ ہے. اور جب زمین دراز کی جائے اور کو کچھ اس میں ہے ڈال دے اور خالی ہو جائے اور اپنے رب کا حکم سنے اور جیسے سجاوار ہی یہ ہے. اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا. تو وہ جو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے اس سے بہت جلد سہل حساب لیا جائے گا اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. اور وہ جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ جلد ہی موت مانگے گا اور بھڑکتی آگ میں جائے گا. بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا. وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں. ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں اور چاند کی جب پورا ہو ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے. تو کیا ہوا انہیں ایمان نہیں لاتے اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں. تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سوچنا دو مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. سورہ انشقاق تفسیر. سورہ انشقاق مکے میں اتری. اس میں 1 رکوع 25 آیتیں 107 کلمے 430 اکشر ہے. قیامت قائم ہونے کے وقت اپنے شک ہونے پھٹ جانے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے اور اس پر کوئی عمارت اور پہاڑ باقی نہ رہے، یعنی اس کے پیٹ میں خزانے اور مردے سب کو باہر، اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے متعلق اور اس کی اطاعت کرے. اس وقت انسان اپنے کرموں کے پھل دیکھے گا، یعنی اس کے سمکش حاضری کے لیے. مراد اس سے موت ہے. مدارک
और अपने कर्मों का बदला पाना, और वह मुमिन है। आसान हिसाब यह है कि उस पर उसके कर्म पेश किए जाएं, वह अपनी फरमानबरदारी और गुमराही को पहचाने, फिर फरमानबरदारी पर सवाब दिया जाए और नाफरमानी से तजावुज फरमाया जाए। यह सरल हिसाब है, न इसमें सख्ती, न यह कहा जाए कि ऐसा क्यों किया, न उसकी तलब हो, न उन पर हुज्जत कायम की जाए, क्योंकि जिससे मुतालिबा किया गया उसे कोई उज्र हाथ न आएगा और वह कोई हुज्जत न पाएगा, रुस्वा होगा। अल्लाह ताला हिसाब की सख्ती से पनाह दे। घर वालों से जन्नती घर वाले मुराद हैं, चाहे वो हूरों में से हों या इंसानों में से। अपनी इस कामयाबी पर, और वह काफिर है जिसका दाया हाथ तो उसकी गर्दन के साथ मिलाकर तौक में बांध दिया जाएगा और बाया हाथ पीठ के पीछे कर दिया जाएगा, उसमें उसका आमाल नामा दिया जाएगा। इस हाल को देखकर वह जान लेगा कि वह जहन्नम वालों में से है तो, और यह सुबूराह कहेगा। सुबूर के मानी हलाकत के हैं। दुनिया के अंदर अपनी इच्छाओं और वासनाओं में और घमंडी अपने रब की तरफ, और वह मरने के बाद उठाया न जाएगा। जरूर अपने रब की तरफ पलटेगा और मरने के बाद उठाया जाएगा और हिसाब किया जाएगा। जो लाली के बाद नमूदार होता है और जिसके गायब होने पर इमाम साहिब के नजदीक इशा का वक्त शुरू होता है। यही कौल है बहुत से सहाबा का, और कुछ उल्मा शफक से लाली मुराद लेते हैं। जानवरों की तरह जो दिन में मुंतशिर होते हैं और रात में अपने घोंसलों और ठिकानों की तरफ चले आते हैं, और तारीकी की तरह और सितारों और उन कर्मों की तरह जो रात में किए जाते हैं, जैसे कि तहज्जुद, और उसका नूर कामिल हो जाए, और ये चांदनी के दिनों यानी 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीखों में होता है। यह खिताब या तो इंसानों को है, उस सूरत में मानी ये है कि तुम्हें हाल के बाद हाल पेश आएगा। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मौत की सख्तियों, फिर मरने के बाद उठना, फिर हिसाब के मैदान में पेश होना, और यह भी कहा गया है कि इंसान के हालात में तदरीज है। एक वक्त दूध पीता बच्चा होता है, फिर दूध छूटता है, फिर लड़कपन का जमाना आता है, फिर जवान होता है, फिर जवानी ढलती है, फिर बूढ़ा होता है। और एक कौल यह है कि यह खिताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि आप मेराज की रात एक आसमान पर तशरीफ ले गए, फिर दूसरे पर इसी तरह दर्जा दर्जा कुर्ब की मंजिलों में वासिल हुए। बुखारी शरीफ में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बयान फरमाया गया है। मानी ये है कि आपको मुशरिकों पर फतह हासिल होगी और अंजाम बहुत बेहतर होगा। आप काफिरों की सरकशी और उनके झुटलाने से दुखी न हो, यानी अब ईमान लाने में क्या उज्र है। दलीलें जाहिर होने के बावजूद क्यों ईमान नहीं लाते। इससे मुराद तिलावत का सजदा है। जब सूरह इकरा में वस्जूद वक्तरिब उतरा तो सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़कर सजदा किया। मुमिनों ने आपके साथ सजदा किया और कुरैश के काफिरों ने सजदा न किया। उनके इस काम की बुराई में यह आयत उतरी कि काफिरों पर जब कुरान पढ़ा जाता है तो वो तिलावत का सजदा नहीं करते। इस आयत से साबित हुआ कि तिलावत का सजदा वाजिब है सुनने वाले पर, और हदीस से साबित है कि पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर सजदा वाजिब हो जाता है। कुरान करीम में सजदे की 14 आयतें हैं, जिनको पढ़ने या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है, चाहे सुनने वाले ने सुनने का इरादा किया हो या न किया हो। तिलावत के सजदे के लिए भी वही शर्तें हैं जो नमाज के लिए, जैसे कि पाकी और किबले की तरफ मुंह होना और सत्रे औरत वगैरह। सजदे के अव्वल और आखिर अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। इमाम ने सजदे की आयत पढ़ी तो उस पर और मुकद्दियों पर, और जो व्यक्ति नमाज में न हो और सुन ले उस पर सजदा वाजिब है। सजदे की जितनी आयतें पढ़ी जाएंगी उतने ही सजदे वाजिब होंगे। अगर एक ही आयत एक बैठक में बार बार पढ़ी गई तो एक ही सजदा वाजिब हुआ। बाकी की तफसील फिकह की किताबों में है। तफसीर अहमदी, कुरान को और मरने के बाद उठने को, कुफ्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाना, उनके कुफ्र और दुश्मनी पर तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।